سود علی خان صاحب اور فردوس صاحبہ جو ہے اور پوری مینجمنٹ منشا غازی صاحب بھی اس کے ممبرز ہیں، تو اس کا ارینج کرتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ جو تھنک ٹینک ہے، یہ تھنک ٹینک اگر اس طرح کے سیمینار اور ورکشاپ جب تک کراتے رہیں گے تو یہ اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ٹورزم ہاسپٹیلٹی کو، انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے اور یہاں پہ اولڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو یہ ینگ ٹو اولڈ کا جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس کے لیے جو تجربے کی باتیں ہیں، جو کتابی باتیں ہیں، وہ ان کو بتائی جا رہی تھیں، اور اس سے بچوں نے بہت سیکھا. خاص طور پر یہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آج موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت ان کو آگاہی ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سیمینار وقت کی ضرورت ہیں، اور اس کے بغیر اویئرنیس آ نہیں سکتی. پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، سیر و سیاحت کی اگر بات کی جائے یہ بھی بتائیے گا ذرا، بڑا اہم کامنٹ. جی، اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے نیچرل ٹورزم، کلچرل ٹورزم، ریلیجس ٹورزم کی فروغ کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے، اور لوگ کر رہے ہیں. ٹور آپریٹر کام کر رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ہمارا کالج آف ہیلتھ انوائرمنٹل سائنسز کے اندر ٹورزم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ کام کر رہا ہے. تو اس میں پاکستان کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹورسٹ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. اور ایک اور آپ کو بات، یہ سی پیک کا جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو صرف پاکستان میں 289,000 ہاسپٹیلٹی کے لوگ کی مین پاور کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ابھی سے اگر ہم تیاری کریں گے تو یہ وہ پروفیشنل تیار ہوں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا. آپ کا بھی خیال ہے اس حوالے سے ہسٹوریکل پلیسز کا ذکر ہوا، ٹورزم کی فروغ کا ذکر ہوا، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہونا کتنا ضروری ہے یوتھ کی موبلائزیشن کے لیے، ان کو اویئر کرنے کے لیے. کسی یوتھ جو ہے وہ کسی ملک کا اثاثہ ہے، اور وہ اثاثہ جتنا اپنی لیگیسی سے، اپنے ہیریٹیج سے، اپنی تاریخ سے آشنا ہے، یقینی بات ہے وہ اس کے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہوگا. تو یہی ایسے ہی فورم کا پہ لوگوں کو انوالو کرنا، پرٹیکولر یوتھ کو انوالو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو آگاہی دی جائے. وہ وقت جو ہم نے اس فیلڈ میں گزارا ہے اور دیگر لوگوں نے اس وقت فیلڈ میں گزارا ہے، وہ اپنے تجربے سے، اپنی تجربات کی روشنی سے جو ان میں جو آؤٹ کم ہے اس کے، وہ اپنی یوتھ سے شیئر کریں. تو انشاءاللہ یہ چیز، کیونکہ اس دفعہ کا موضوع بھی جو انٹرنیشنل ٹورزم ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا موضوع بھی جو ہے ری تھنکنگ ٹورزم ہے. تو یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہم یوتھ کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے ٹورزم جو ہے پوسٹ کووڈ ایرا میں بھی اور اپنے آپ کو سیو کرتے ہوئے، اپنی انوائرمنٹ کو سیو کرتے ہوئے کیسے لے کے چلنا ہے. ان کے بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں فردوس صاحبہ، یہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت مبارک آج کے ایونٹ کے لیے. مبارک. اور الحمدللہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ اس کے اوپر بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ٹورزم کے فروغ کے لیے ہماری بڑی فوکسڈ ہیں ہم، کہ ہمارے ملک میں جب ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی بڑی بہترین طریقے سے سروسز دی جاتی ہیں. سری لنکا میں جائیں تو بنگلہ دیش نے بھی بہت کر لیا ہے، لیکن ہم اپنے ملک میں اتنی خوبصورت ہمارا وطن ہے، اس کی جہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزیں نوازی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. جیسے ہمارے فیاض صاحب نے آج ذکر کیا کہ وہ چیری بلاسم کے لیے ہم جاپان جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اسکردو والے میں سائڈ پہ چیری بلاسم موجود ہے. اتنے خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں، لیکن ہم اس ہیریٹیج کو نہیں سنبھال سکتے اور نہ ہی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہم اکثر و بیشتر حکومت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. ہمارے سوشل سرکلز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اچھا، یوتھ بھی یہاں پہ جمع تھی، اسٹوڈنٹس یہاں پہ جمع تھے یونیورسٹیز کے، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں وہ، تو یہ تو بڑا اچھا خوشائن اقدام ہے. جی بالکل، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے انوالو ہو، اور آنے والے ٹائم میں ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کو ہمارے ملک میں جس طرح کے ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس کو فروغ ملے، اور اس کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اور وہ اسٹینڈرڈ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان سے ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو یہ چیزوں کی اویئرنیس ہو، اور ان میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اس چیز میں اور اس فیلڈ میں آئیں. اس میں جب فیلڈ میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا، اور ہم ترقی کی جائیں گے. جو کہ ہم IMF کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ ہمیں ویسے ہی آ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے.
क्योंकि पाकिस्तान में हर नेमत मौजूद है, हर तरह की। लेकिन हम अपने वतन में उसकी कदर नहीं कर रहे हैं ना। पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, मैदानी सिलसिले हैं, सरसब्ज पहाड़। अच्छा इनिशिएटिव था ख़ास तौर पे यूथ के लिए कि ज़ाहिर है हमें ज़रूरत है। और जो उन्होंने हमारे गेस्ट स्पीकर ने टूरिज़म की बात की, मैं खुशकिस्मती से इन बहुत सी जन्नती जगहों पर ख़ुद अपने पैदल फिर कर आ चुका हूँ। ये ज़मीन पे अगर आप उन जगहों को जाकर देखें तो आप इसको बग़ैर किसी शक के उस जगह को जन्नत कह सकते, इतनी खूबसूरत जगह। लेकिन बदकिस्मती से न किसी लेवल पे वो विल नहीं है कि उन जगहों पर हम उन लोगों को ले जाएं जिससे हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं एक छोटी सी इंडस्ट्री के थ्रू। और जैसे अब ये खान साहब हमारे ने किया है, मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस साइट पे जाएंगे, टूर ऑपरेटर्स बनेंगे, टूर्स लेके जाएंगे। मैं इस उम्र में मेरा दिल करता है कि मैं इनकाद करना, अरेंज करना नौजवान नस्ल की मोबिलाइजेशन के लिए। देखें ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी आज डिस्कस हुआ है। एक मेन तो ट्रेंड ये है कि जहाँ से लोग बाहर जा रहे होते हैं। अब हमारा मेन फोकस ये है कि हमने बाहर से लोगों को यहाँ कैसे लेके आना है। तो इस तरह की इवेंट जो है उनका इनेकाद होगा तो हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी कि जब बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं जिन्हें हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो आज उस सारी चीज़ पे फोकस किया गया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है। कितना अर्सा हो गया आपको खिदमत करते हुए इस टूरिज़्म की फील्ड के अंदर? देखिए मुझे टूरिज़्म का काम, मैं डिफरेंट बड़ी एजेंसीज़ के साथ एज ए कंसल्टेंट काम करती रही हूँ, तो उसमें तो मेरा काफ़ी और बहुत से हमारे जो 80% चीजें हैं उसको तो हम गेज ही नहीं करते। मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं अभी इसको कंक्लूड करता हूँ कि बहुत सारी चीजें जैसे आपको 8 आवर्स का पे किया जा रहा है और 8 आवर में अगर हम अटेंशनली एक चाय भी पी रहे हैं इस माइंड सेट के साथ कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं रेस्ट कर लूँ अपने टाइम से ज्यादा, तो इट मीन कि यू बीन नॉट ऑनेस्ट विद योर थिंग्स। कोई तो नहीं देख रहा ना। तो ये वो चीजें जो आपने बिल्ड करनी है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एचआर का जो रोल है, उन्होंने ये जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इन चीजों को जो है ना वो डिफ्यूज करवाना और उनको दूसरी चीजों पे ले जाना। तो आप एचआर का जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है। ये देखिए These are the different aspect of our heritage we have. What we need is कि हम इसको प्रोटेक्ट रखें, हम अपनी हिस्ट्री को अपनी इस हिस्ट्री के अपनी इस हेरिटेज के साथ लेके चलें कि हमने इसे सेव करना। वरना वो हिस्ट्री में तो ये है कि वो लोग जो चले गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शख्सियात हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है। जो कहा जाता है कि इंसान को जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद करना हो तो वो सबसे पहले अपनी मखलूक में उसका जिक्र बुलंद करता है। जब मखलूक में जिक्र बुलंद होता है तो लोग उसकी तारीफ अदा करते हैं। तब तारीफ जब बुलंदी तक पहुंचती है तो फिर मलाइका तक उसकी तारीफ पहुंचती है, फिर मलाइका भी उसकी तारीफ बयान करते हैं और उसका जिक्र बुलंद हो जाता है। तो ये उन लोगों का खासा है कि जिन्होंने शायद हमें कुछ सिखाया है, तो शायद अल्लाह ताला ने हमें उनके सबब जो है वो जो कुछ दिया है हमें मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फयाज अली साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने हम लोगों को क्या मैं नाम के हवाले से बताना चाहूँगा, शायद कि वो मिस्टेक होगी। मेरा नाम फयाज अहमद है। चीजें इन्होंने बयान की, हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए था, गवर्नमेंट को इनसे फायदा उठाना चाहिए था कि वो पॉसिबिलिटी जो कि ये बयान कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होनी चाहिए, खासतौर पे वेस्टेज जितना कर रहे हैं, और ये हमारी हेरिटेज को और हमारी नेचुरल हेरिटेज को पर्टिकुलरली नुकसान पहुंचा रही है, तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज है। लैंड ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज एंड नेचुरल डाइवर्सिटी पाकिस्तान, हमने इसको कैसे सेव करना था, हमने इसके लिए क्या पॉलिसी बनानी थी, वो मैंने आपको आई थिंक Humza, there are so many cherry blossom
पाकिस्तानी एरियाज में, तो हमने आज तक रियलाइज ही नहीं किया कि हम कितने पोटेंशियल हमारे पास साइट्स हैं जिनको कि हम हेरिटेज की साइट्स कंसिडर करते हुए, का वो नेचर हो, का वो कल्चर हो। नेक्स्ट दिस अगेन वन पिक्चर ऑफ हिंदुजा, ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स ही हैं। अब आप देखें कि हमारे पास एडवेंचर करके आपने सीखना है, और हम एडवेंचर करने से घबराते हैं। इसी तरह जब हम तमाम जगहों पर जब जाते हैं तो अपनी हेरिटेज को किस तरह नुकसान में जाते हैं, अब आगे चलिए। कुरान के हवाले से ही है, do they not travel through the land so that their hearts may be thus learn wisdom। अब हम दावा करें कि कुरान हमें कह रहा है कि आप ट्रैवल करें तो विजडम आपको मिलती है। दुनिया में वो लोग बहुत ज़्यादा जो है लर्नड हैं, जो कि ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं, लेकिन उन्होंने सफ़र किया है, और सफ़र करने के बाद से उन्होंने दुनिया के लोगों को देखा है, मुख्तलिफ अशकाल को देखा है, मुख्तलिफ साइट्स को देखा है, और एक्सप्लेन करते हैं बाद में आकर। नेक्स्ट, पाकिस्तान में हेरिटेज और हिस्ट्री, मेरा ख्याल है जो अगर हम देखें और अपने आप को कहें तो हमें फ़ख्र इस बात पे होना चाहिए कि हम तो अमीन हैं 7000 साल हिस्ट्री के। हम तो अमीन हैं उस वक्त की हिस्ट्री के जब दुनिया के बे नहीं जानती थी, ABC का वर्ड नहीं जानती थी, और हमने यहाँ पर मोहनजोदारो और मेहरगढ़ जैसी तारीखी जो सिविलाइजेशन जो है उनकी क़याम हो चुका था। दुनिया को शायद अंधेरों में भटकी हुई थी, हमने रोशनी के उजाले उस वक्त दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद till today we are not proud of ourselves, we are not proud of our heritage, we are not proud of our history। शायद कि हम खुद से अपने आप को रियलाइज नहीं करवाना चाहते, और यही चीज़ हमें उजागर करनी है तमाम लोगों में, बच्चों में, पर्टिकुलरली अपनी कौम में, अपनी यंगस्टर्स में, कि हमें एक लाइन लगा देनी चाहिए। शायद कि मैं 5 साल 2 साल या कल परसों मेरी के दौरान मौजूद ना हूँ, लेकिन मेरी लेगेसी मेरे बच्चों में और आगे उनके बच्चों में मुसलसल जारी रहनी चाहिए। तो ये तकरीबन तारीख देखें, अब ये नेचुरल हेरिटेज है, ये नेचुरल हेरिटेज हमारा केटू का पहाड़ दुनिया भर में सेकंड हाईएस्ट कंसिडरेशन इसकी है, लेकिन उसमें अगर आप जाके देखें तो हमने इससे नुकसान कितना पहुंचाया है कि इस वक्त लास्ट जो हमारा सीजन गुजरा है इसमें एक्सपीडिशन। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ, आपका दोस्त नुमान मलिक। बहुत खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया, हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी जिक्र हुआ और टूरिज़म की फ़रोग के लिए बात हुई। तो हमारे साथ निसार चौधरी साहब मौजूद है, ये गुफ्तगू करते हैं। बहुत खूबसूरत स्पीच भी की और आज के मेहमान खुसूसी थे, तो इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर कितना खूबसूरत इवेंट आज हुआ है और इस तरह के इवेंट्स होना कितना ज़रूरी है? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, और स्पेशली क्योंकि कहते हैं ना नीड्स ऑफ द टाइम, तो ये नीड है जिसमें हॉस्पिटैलिटी टूरिज़म की बात हो, और ये ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बल्कि जो नई जनरेशन है उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, आपको पता है जो कनेक्टेड है दुनिया का, तो जो मल्टी डायमेंशंस हैं टूरिज़म की, हॉस्पिटैलिटी की, उस पर बात हुई है। और जो जैसे आपने कहा कि कितने ज़रूरी हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बैकबोन्स है। अगर आपने ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और फैसिलिटीज़ ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, अच्छी लगेगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है अगर सैर व सियाहत की बात की जाए, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बाहर से भी डेलीगेशंस आते हैं और वो तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बहुत यानी कि इतनी खूबसूरती कम जगहों पे है। तो क्या कहेंगे इस कमेंट के हवाले से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और फिर जो कंपोनेंट है, एक तो ये है ना कि हम एज ए पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, मैं एज ए इंडिपेंडेंट और मेरिट पे अगर बात करूँ तो वी हैव 4 सीजन्स, वी हैव एवरी काइंड ऑफ कल्चर एंड इन्वायरमेंट, जिसमें माउंटेन्स भी है, जिसमें सी भी है, जिसमें रिवर्स भी है, और जिसमें दूसरी लैंड भी है। फिर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वी हैव मल्टीपल थिंग्स। तो नो डाउट पाकिस्तान इज़ सच ए ब्यूटीफुल कंट्री और वेरी पोटेंशियल फॉर टूरिस्ट्स। अच्छा देखिए, यूथ को टूरिज़म का अवेयर करना कितना ज़रूरी है, जो हमारी नौजवान नस्ल है? जैसे मैंने आज का टॉपिक भी यही था, तो यूथ किसी भी मुल्क की जो पोटेंशियल है उसकी बेस है, क्योंकि इवेंचुअली ये फ्यूचर आपका जो प्रोडक्ट है वो तो यूथ है। तो यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें वैल्यू हो अपनी मुल्क की पोटेंशियल का और टूरिज़म का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरजमीन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।